Hello dear students, how are you students? Students, in live class today we starts molecularity of reaction and order of reaction. Student, first of all we start molecularity of reaction. Students, what is molecularity? Molecularity denotes number of molecules of reactants participates in elementary step of reaction denotes in the form of molecularity of reaction. Students, generally molecularity are present in whole numbers. It cannot be zero and not negative or in fraction. Students, it always be in whole numbers. It may be unimolecular, bimolecular, trimolecular. On the basis of number of reactant molecules participates in elementary step of reaction or balanced chemical equation. Suppose that students unimolecular means only single reactant forms product, then molecularity of the reaction would be unimolecular. Suppose that A plus B forms product. It may be written in following form: 2A forms product. Student, in this case, two reactants are forms product. Therefore, 2 moles used in this manner. Therefore, molecularity is be called as bimolecular. Same as students trimolecular, A plus 2B or 2A plus B or A plus B plus C. All three reactions include in trimolecular and forms product trimoleculars. Students, if reactants present in 3 numbers, then these reaction includes in simpler molecularity of reaction. These are simpler reaction, students, but more than three molecules are participates in chemical reaction, then these reactions are called as complex molecularity reactions. Students, in these reactions divided into simpler reaction, and rate determining step is the slow step of reactions. Therefore, molecularity is be decided on the basis of slow step reaction. Students, what is molecularity? मोलिकुलरिटी क्या है बच्चों? किसी भी रिएक्शन में, एनी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको आप किस नाम से कॉल करेंगे बच्चों? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज किस में प्रेजेंट होती है? होल नंबर्स में. इट मीन्स 1 2 3 लाइक एच. स्टूडेंट्स, it can be divided into unimolecular, bimolecular, trimolecular on the basis of molecules of reactant participates in the reaction. Suppose that one molecule participate in the reaction, then reaction is called as unimolecular.
when two reactant participants in reaction, then molecularity is be called as bimolecular, and same as three molecules participate in the reaction, then molecularity will be trimolecular. These these unimolecular, bimolecular, trimoleculars molecularity is called as simple molecularity of reaction. But when more than 3 moles, but when more than 3 molecules participate in the chemical reaction, then reaction is called as complex molecularity of the reaction. Students, these are theoretical value. These are theoretical value. Students, ये सभी क्या है? theoretical value है. Students, its value कैन नॉट बी जीरो. इसकी वैल्यू के जीरो नहीं हो सकती है. स्टूडेंट्स, और पॉइंट्स इसके अगर हम देखें, इसके और पॉइंट्स अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इससे हम रिएक्शन मैकेनिज्म को डिसाइड नहीं कर पाते, डिटरमाइंड नहीं कर पाते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, reaction mechanism cannot be considered, cannot be determined by the molecularity of the reaction. Students, you know very well, molecularity of reaction and second part, order of reaction. What is the basic difference? What is the basic difference in molecularity of reaction and order of reaction? Students, you know very well, molecularity is a theoretical value, and it considered by the number of by the total number of molecules participate in the reaction. But order of reaction is the sum of the power, of the changeable concentration of reactants. Students, suppose that some example categorized here. 2NH3 forms in the presence of iron and molybdenum, forms N2 plus 3H2. Suppose that in this category two reactants are participate, therefore molecularity of this reaction is be 2. It means this is a bimolecular reaction. But order of reaction only determined by the changeable concentration of reactants. Students, rate of reaction in for this reaction dx upon dt directly proportional concentration of NH3, but its power is 0. Because concentration of ammonia determined according to practically, it means its concentration is not be changed. Therefore this reaction includes in zero order of reaction. Next example, 2N2O5 forms 4NO2 plus O2. Students, according to this reaction, we say that this reaction molecularity is be double, but order of reaction is be first. It means it is the example of first order reaction. So that guys, this can be explained by only mechanism. Students, this reaction completes in 2 steps. In step first, N2O5 dinitrogen pentaoxide dissociate in 2NO2 plus nascent oxygen. It is a slow step. Students, slow step is a rate determining step. Therefore students, R equal to dx upon dt directly proportional concentration of reactant N2O5, it means 1. N2O5, it means 1. Here students, only N2O5 is a single, therefore this reaction have first order reaction. Consider in first order reaction. Student, in step second,
Another N2O5 react with nascent oxygen, then it forms then it forms 2NO2, 2NO2 plus O2. But students, it is a fast step. It is a fast step. It is a fast step. Therefore, rate of reaction determined not determined by this reaction. Rate of reaction not determined by the this reaction. Students, so that we consider only it first order reaction. So we can say that only rate of reaction determined by the slow step of the reaction. So that students, order of reaction is a practically phenomena. Practically phenomena. Students, it may be zero. It may be zero. It may be positive. It may be negative. It may be in fraction. It may be in fraction. But molecularity of the reaction is be always in whole numbers. In whole numbers. Students, molecularity of the reaction always किस में होती है? whole numbers में होती है, और ये कभी भी जीरो नहीं होती है. Students, it may be zero in whole numbers and in fraction. It means it can be expressed in fraction and whole numbers. Students, on the basis of order of reaction, determined reaction mechanism by the slow step of the reaction, so that it is a rate determining step. It can be expressed by order of reaction. Students, so that we considered difference between molecularity of reaction and order of reaction. First difference on the basis of its definition. Second, it is a theoretical value and it is a practical value or observed value. Practical value can be said observed value in other forms. Students, it may be present in whole numbers, but it may be present in positive, negative, zero and in fraction forms. Students, on the basis of molecularity of the reaction cannot be decided reaction mechanism of the reaction. Students, in order of reaction, on the basis of order of reaction mechanism can be decided by the reaction. तो स्टूडेंट्स, ये 4 बेसिक डिफरेंस हम इसमें यूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स सभी का? तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है. नाउ वी स्टार्ट. राइट डाउन स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. राइट डाउन स्टूडेंट्स, first of all, molecularity of reaction. The total number of reactant molecules taking part in elementary step of reaction is known as molecularity of reaction. It known as molecularity of reaction. Student, write down in next line. Its value is always in whole numbers. So the reaction is called unimolecular, bimolecular, trimolecular on participating 1, 2 and 3 molecules respectively. Student, write down unimolecular, bimolecular, trimolecular with examples. Write down it, students, completely write down. Now student, write down in next line.
hence hence molecularity of simple reactions, molecularity of simple reactions is equal to the sum of numbers of various reactant molecules in balanced chemical reactions, in balanced chemical reactions. Student, write down in next line. Molecularity is a theoretical value. Molecularity is a theoretical value, and it is never possible, more than 3. Never possible more than 3. Student, write down in next line. On the basis of molecularity, reactions can be divided into following parts. Students, write down first simple reactions. Write down, student, first simple reactions and second complex reactions. First, write down, student, simple reactions. Write down, student, first simple reactions. चलिए बच्चों, इसमें लिखिए फर्स्ट टॉपिक सिंपल रिएक्शंस. द reactions whose molecularity is equal to the number of their reactants. Their reactants are called simple reactions. क्लियर बच्चों? तो इसको आप, इन तीनों रिएक्शंस को आप किस में इंक्लूड कर सकते हो स्टूडेंट्स? सिंपल रिएक्शंस में आप कंसिडर कर सकते हो. ओके गाइज, नाउ राइट डाउन सेकंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. नाउ राइट डाउन स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. The reactions in which the number of reactants is more than 3 generally takes place in 2 or more than steps. The slowest step in the reaction is called rate determining step. In such reactions, there is no importance of molecularity of reaction. Student, write down in next line. The molecularity of such reaction is equal to total number of reactants, molecules or ions present in elementary step, which is represented in the form of order of reaction. Okay guys, it is a total molecularity of reaction. Okay, now write down topic students. Order of reaction. The sum of power. Write down students definition first of all. The sum of powers of all concentration. Terms in rate law. Expression of a reaction is called order of reaction. It denoted by small n. In next line students, the order of reaction may be 0, 1, 2, 3 or fraction. The order of reaction is be 0, 1, 2, 3 or fraction.
Student, in next line, let a chemical let a chemical reaction is as follows. Let a chemical reaction is as follows is as follows. Small a plus a small b plus a small c equal to P. Then rate of reaction R equals to dx upon dt directly proportional small a m small b small small a small b small c. The power of a plus b plus c equal to n denotes number of order of reaction, n denotes order of reaction. Student, write down it. In next line, write down, students. Order of reaction is a theoretical, is a observed value or practical value. Order of reaction is a practical or observed value, practical or observed value. Student, write down in next line. On the basis of order of reaction, on the basis of order of reaction, mechanism of a chemical reaction can be determined. Rate determining step would be slow step in the chemical reaction. Students, write down some example. First example of zero order reaction. This one example, first example is a zero order reaction. Write down, students, example zero order reaction. This one categorized in zero order reaction. And second example of this category, students, first order reaction. Example of this category, first order reaction. Now write down, students, zero order example, first zero order reaction and first order reaction. Write down, students, both example with mechanism. क्लियर सभी बच्चों का बेटाओ? तो हमने अभी केवल जो आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों, वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. स्टूडेंट्स, एक बार और समझ लीजिए आप, क्लियर, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए बच्चों. देखिए, हमने आपको क्या बताया, जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, ये टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है टेकिंग पार्ट्स इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन. बट स्टूडेंट्स, ये क्या है? द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन. तो स्टूडेंट, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द चेंजेबल रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, उनकी सम ऑफ द पावर है, द सम ऑफ द पावर है. स्टूडेंट्स, it may be present in whole numbers or it may be present in 0, 1, 2, 3 or fraction. Students, it is a theoretical value and it is a practical value. Students, on the basis of molecularity of reaction cannot be determined reaction mechanism of the reaction. Students, on the basis of order of reaction, reaction mechanism can be determined of the reaction. Clear बच्चों? मुझे लगता है कि ये 4 पॉइंट दोनों में डिफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएंगे. क्लियर सभी बच्चों का? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. चलिए तो बच्चों देखते हैं, आप बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं. हमने जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ा है बच्चों, तो अब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन.
स्टूडेंट्स जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, स्टूडेंट्स इनकी क्वेश्चंस किस वे में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए हम उस पर डिटेल डिस्कस करते हैं आपसे। स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर याद रखेंगे, उस फर्स्ट टॉपिक का नाम है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, दोनों को मैं एक साथ समझा देता हूँ बच्चों। डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट तो अपना क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डेफिनेशन होगा। सेकेंड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट जो हमको यहाँ पर लर्न करना है उसका नाम होगा बच्चों डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन। डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन सेकेंड पॉइंट, अपन इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। राइट डाउन डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स थर्ड कैलकुलेट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैलकुलेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बच्चों देखिए नेक्स्ट इसमें फोर हम जो डिटरमाइन करेंगे स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेन करेंगे आपको हाफ लाइफ पीरियड। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको टॉपिक बताएंगे, इनके जो इक्वेशंस आएगी उनसे रिलेटेड ग्राफ समझाएंगे। ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं आपसे बच्चों, ग्राफ्स के बारे में डिस्कस होगा। ये ग्राफ्स स्टूडेंट्स सिक्स टॉपिक आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल्स। और स्टूडेंट सेवन टॉपिक इसमें जो बन सकता है वो होगा न्यूमेरिकल, इससे बन सकता है न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट सेवन टाइप्स के पैटर्न में इनके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम एक एक टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन सुनिए बच्चों सभी, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीरो पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज दैट स्टूडेंट्स, अब इसकी डेफिनेशन को आप इस डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन में भी समझा देंगे। कैसे समझाएंगे स्टूडेंट्स? सपोज दैट स्टूडेंट्स, सपोज दैट ए reactant forms product and concentration of reactant is taken CA. Students, in this category, according to law of mass action, law of mass action क्या कहता है बच्चों? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन आर, डायरेक्टली आर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? dx अपॉन dt। आर dx अपॉन dt यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो। अब बच्चों ये जीरो पावर पे डिपेंड होता है, यानी कि आप इसके डेफिनेशन यहीं से बना सकते हो। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व करिए तो dx अपॉन dt इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन कांस्टेंट आ जाएगा k नॉट, डिनोटेड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड पावर CA पावर जीरो। यू नो स्टूडेंट्स, आप किसी की भी पावर अगर लेते हैं, जीरो लेते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है स्टूडेंट्स? 1 रहती है, यूनिट रहती है। सो दैट स्टूडेंट dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? dx अपॉन dt
डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, के नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, के नॉट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी एक्स इक्वल टू के नॉट डी टी, के नॉट डी टी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और इक्वेशन फर्स्ट जो है बच्चों, यही क्या है, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन है। सो दैट इज गाइज, इट इज ए डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन। क्लियर है सभी बच्चों का डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन तक? अब स्टूडेंट्स इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। राइट डाउन स्टूडेंट टॉपिक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन टॉपिक डेफिनेशन, डेफिनेशन, those chemical reaction in which rate of reaction is directly proportional to zero power of concentration of reactants, zero power of concentration of reactants are called as zero order of reaction. Now student write down in next line. Let we consider concentration of reactants is be taken Ca, Ca. Now student write down according to completely this here equation first. आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लो बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिए, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन तक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप इसके आगे देखिए। अब हम यहां से आपको बता रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब इसके आगे देखना आप, देखो बच्चों, आपके पास लास्ट इक्वेशन क्या आई है, dx इक्वल टू के नॉट डी टी आई है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब आप देखिए, टेक इंटीग्रेशन, टेक इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट्स dx इक्वल टू के नॉट डी टी, ये आपने इसका इंटीग्रेशन किया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, t होता है। लेकिन ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, सो दैट इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा स्टूडेंट्स, c इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लेट t इक्वल टू 0 सेकेंड, देन x इक्वल टू 0। ये आपको मानना पड़ेगा बच्चों, ये आपको t इक्वल टू 0 सेकेंड पर आपने x की वैल्यू को 0 लिया है, यूज किया है। तो अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हैं कब, जब t 0 होता है, तो बच्चों c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। देन वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, x इक्वल टू के जीरो टी प्लस 0। तो x इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास, के जीरो टी आ जाएगा, के नॉट टी आ जाएगा। x इक्वल टू, x क्या है बच्चों यहाँ पर, x क्या है, डिसोसिएट मोल्स, डिसोसिएट मोल्स बोलो, पार्ट बोलो, डिसोसिएट पार्ट इन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में से जो डिसोसिएट पार्ट होता है उसको x से डिनोट करते हैं बच्चों, ये x होता है। अब आपके पास स्टूडेंट्स इसको आप कैसे लिख सकते हो, x
O इक्वल टू x0 अपॉन x अपॉन टी लिख सकते हो, x अपॉन टी लिख सकते हो। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए आप इसको। और इक्वेशन थर्ड ही आपके पास क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उस पर डिपेंड होता है। आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़े, प्रॉपरली ध्यान देके पढ़े कि आपसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्वेश्चन पूछा है या डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन क्वेश्चन पूछा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्लियर सभी स्टूडेंट्स का यहां तक। अब बच्चों हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ ली, हमने इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन निकाल ली, इसके बाद में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस निकाल ली। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां तक नोट कर लीजिए सभी, इसको आप ऐसे कैसे नोट कर लेंगे कंप्लीटली। और अब इसके बाद में हाफ लाइफ पीरियड पढ़ेंगे। हाफ लाइफ पीरियड स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड? तो देखो स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ पीरियड का मीन्स होता है इट इज ए टाइम, इट इज ए टाइम, द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज वुड बी जस्ट हाफ, वुड बी जस्ट हाफ। मतलब इट इज द टाइम पीरियड इन विच टाइम पीरियड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वुड बी जस्ट हाफ of primary concentration or initial concentration. Students, suppose that for this example, concentration of reactant initially is be taken A at t equal to 0 सेकेंड। स्टूडेंट्स t इक्वल टू 0 सेकेंड पर x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। लेकिन ये कंसंट्रेशन t हाफ टाइम में, t हाफ टाइम में यानी कि जिस टाइम में ये a/2 हो जाती है, a से क्या बन जाए बच्चों, a/2, जस्ट हाफ हो जाए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जस्ट हाफ जिस टाइम में होती है उसको आप किस नेम से कॉल करते हो, हाफ लाइफ पीरियड से। तो स्टूडेंट्स ये टाइम जिस टाइम में हो रही है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी हाफ से। तो बच्चों x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ये जो डिसोसिएट पार्ट है हाफ रिमूव हो चुका है और हाफ यहाँ पर बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो रिमूव हो डिसोसिएट पार्ट हो चुका है वो उसकी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू a/2 है। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले आप हाफ लाइफ पीरियड टॉपिक डाल लीजिए और हाफ लाइफ पीरियड की स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन लिखेंगे। हाफ लाइफ पीरियड की आप डेफिनेशन लिखिए बच्चों सभी। हाफ लाइफ पीरियड डेफिनेशन, the time which is required, the time which is required to convert half part of reactant, the time which is required to convert half part of reactant into product in reaction, into product in reaction is called half life period of the reaction. Half life period of the reaction, it is represented by t half, it is represented by t half. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने जो बात आपसे कही है उसको यहां पर समझना बच्चों। अगर आप इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू तो क्या ले ले, a/2 ले ले, पुट कर दे, और t की वैल्यू क्या कर दो, t हाफ कर दो, तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, k नॉट इक्वल टू a/2 और t की जगह पर आपने क्या कर दिया बच्चों, t हाफ कर दिया, t की जगह पर क्या कर दिया, t हाफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स अगर मैंने ये t हाफ किया है तो देखो आप t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में देखिए आप t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a/2k नॉट। देखिए आप t हाफ को आप इस साइड लेके चल जाइए, k नॉट को आप इस साइड लेके आ जाइए, तो a/2k नॉट हो जाएगा, a/2k नॉट हो जाएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको रीड करके देखिए, इसका मीन्स क्या निकल रहा है कि t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a के, और a क्या है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a इक्वल टू क्या है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बच्चों अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए मैं ग्राफ आपको दो तीन एक्सप्लेन करूंगा, अलग अलग इक्वेशन के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए, हाफ लाइफ पीरियड तक आप वो नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स इसको जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें थोड़ा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहां पर इनिशियल से ही थोड़ा चेंजेस करेंगे, आप वहां सी ए की जगह पर ए लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जो शो करने का फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है, थोड़ा सा मैं उस पैटर्न में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो अपने अभी जो बुक चल रही है उसके अकॉर्डिंग है बच्चों, लेकिन अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पर इसको देखेंगे स्टूडेंट्स तो मैं आपको दोनों पैटर्न के बारे में समझा देता हूं बच्चों, दोनों पैटर्न में एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में क्या होता था, इसको ऐसे बताया जाता था डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि अपन ए से प्रोडक्ट बनाते थे या अपन यूं कहे इसको आर से बनाते थे, आर से प्रोडक्ट बनाते हैं तो डी आर अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर जीरो, वहां ऐसे लेते थे ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो बच्चों इसमें क्या होता था, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के नॉट आर नॉट, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाती थी, 1 हो जाती है। तो बच्चों डी आर अपॉन डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के नॉट डी टी, और ये साइन यहां लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होता था, इंटीग्रेशन लेते थे, फिर इसका अपन इंटीग्रेशन डी आर इक्वल टू माइनस के नॉट डी टी ऐसे लेते थे। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाता था बच्चों, आर होता था और माइनस के नॉट डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आता था। स्टूडेंट्स वहां t इक्वल टू 0 सेकेंड पर t इक्वल टू एट t इक्वल टू 0 सेकेंड देन कंसंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू r नॉट, r इक्वल टू r नॉट, ये होता था। स्टूडेंट्स ये तो फाइनल कंसंट्रेशन है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये r नॉट क्या है बच्चों, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये क्या है बच्चों, फाइनल कंसंट्रेशन है। अब आप सभी जानते हैं कि जब t इक्वल टू 0 होता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही होती है यूज, तो बच्चों इसमें r की जगह पर हम क्या यूज कर लेते हैं, r नॉट यूज कर लेते हैं, माइनस के 0, t क्या है 0 सेकेंड तो 0 प्लस c, तो स्टूडेंट c इक्वल टू क्या हो जाता था अपने पास, r नॉट आ जाता था, c की जगह पर अपन r नॉट आ जाता था। तो क्या करते थे पहले क्या करते थे बच्चों, इस r नॉट फिर अपन ये c इक्वल टू r नॉट की वैल्यू पुट कर देते थे, तो अपन इक्वेशन दे देते हैं, सपोज करें ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो c इक्वल टू r नॉट, तो ये c की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के नॉट टी प्लस r नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब आप इस के नॉट टी को आप इस साइड लेके चल जाइए, के नॉट टी तो माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये r था और r नॉट है, अब आप इसको इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव से क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव में बन जाएगा। तो के नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, r नॉट माइनस r अपॉन टी, यानी कि क्या बन गया फॉर्मूला, फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखिए आप हाफ लाइफ पीरियड इससे कैसे निकालते थे, हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता था, जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती थी, आर नॉट बाई 2 हो जाती थी, जस्ट हाफ हो जाती थी, साथ में टाइम टी इक्वल टू क्या होता था, टी हाफ होता था, ऐसे टी हाफ होता था। स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो के नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 डिवाइड बाई टी हाफ, तो स्टूडेंट्स इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए के नॉट इक्वल टू आर नॉट कॉमन है दोनों में से, और इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाता है, तो वो कितना बचता है बच्चों, 2 बचता है, 2, तो ये बन गया 2 इंटू टी हाफ। तो स्टूडेंट्स
टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आर नॉट डिवाइड बाई 2k नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स आज जो अपन ने फॉर्मूला बनाया है वो क्या है, टी हाफ इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन 2k नॉट, यही तो फॉर्मूला है अपना। अभी जो बनाया अपन ने फॉर्मूला ये बनाया है, और जो पहले होता था ऐसे कैलकुलेट करते थे बच्चों फॉर्मूले को आर नॉट। तो बच्चों यहाँ आर नॉट इक्वल टू क्या है, स्मॉल ए है, आर नॉट इक्वल टू क्या है, स्मॉल ए है, यानी कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसेंट्रेशन, और स्टूडेंट्स यहाँ भी टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आप चाहे तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये केवल ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन बोर्ड में इस साल के लिए पर्टिकुलर 2020 के लिए आप जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है उसी को याद रखें, लेकिन ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस तरीके से डेरिवेशन होता था जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ओके गाइज, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये केवल सिंपल एक्सप्लेनेशन है बच्चों। अब बेटा इनकी ग्राफ कैसे बनते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बता दी मैंने। अब स्टूडेंट्स अब इनकी ग्राफ देखिए आप, इनकी ग्राफ कैसे बनेगी, इनकी ग्राफ कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों ग्राफ कहाँ से बना सकते हैं आप बच्चों, ग्राफ बनाने की आपके लिए इक्वेशन केवल क्या है, एक तो x इक्वल टू के नोट टी है, एक इक्वेशन तो ये है x इक्वल टू के नोट टी है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, के नॉट इक्वल टू एक्स अपॉन टी पढ़ा था, तो उससे ये इक्वेशन बन गई थी। अब स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो देखिए ग्राफ में क्या है, आप इसको लीनियर इक्वेशन से कंपैरिजन कर लीजिए। तो y एक्सिस पे x है और x एक्सिस पे t है, तो ग्राफ पहला ग्राफ आप ऐसा बना सकते हो x और t के बिटवीन में, जो कि ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो फर्स्ट ग्राफ किस किस के बिटवीन में, x वर्सेस टी, फर्स्ट ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ बच्चों x वर्सेस टी। सेकेंड ग्राफ बच्चों, सेकेंड ग्राफ आप बनाइए टी हाफ वर्सेस स्मॉल ए, टी हाफ वर्सेस स्मॉल ए। तो स्टूडेंट्स टी हाफ वर्सेस स्मॉल ए बनाना है आपको। तो देखो अभी जस्ट आपने एक इक्वेशन लिखी थी सभी बच्चों ने, क्या इक्वेशन थी बच्चों, देखिए आप इक्वेशन देखिए क्या थी कि टी हाफ इक्वल टू था ए अपॉन 2k नॉट, ये इक्वेशन थी 2k नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अगर इसको हम कंपैरिजन करें लीनियर इक्वेशन से तो y इक्वल टू mx, यानी कि टी हाफ y एक्सिस पे लेना है और x एक्सिस पे a लेना है, क्योंकि ग्राफ अपन किसके बिटवीन में प्लॉट कर रहे हैं, टी हाफ वर्सेस a। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, देखिए y एक्सिस पे आप टी हाफ ले लीजिए, x एक्सिस पे a ले लीजिए, तो ओरिजिन पॉइंट से ग्राफ जाएगा, ये ओरिजिन पॉइंट से ग्राफ जाएगा बच्चों, और इसका जो टेन थीटा होगा, जो इसका स्लोप होगा m, वो किसको डिनोट करेगा बच्चों, 1/2k को, 1/2k नोट को, 1/2k नोट को डिनोट करेगा। तो ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स नोट डाउन इट कंप्लीटली, नोट डाउन स्टूडेंट्स। Students examples, now we consider students example of zero order reaction, examples of zero order reaction। Students examples of zero order reaction, एग्जाम्पल्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए बच्चों। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ HCl,
फॉर्मेशन ऑफ HCl. स्टूडेंट्स H2 plus Cl2 in the presence of sunlight HCl. स्टूडेंट्स इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना तो H2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं है। H2 की भी पावर 0 है, Cl2 की भी 0, इसलिए ये इस कैटेगरी का एग्जाम्पल बन जाएगा। एग्जाम्पल स्टूडेंट लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इनकी कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हुई है। स्टूडेंट सेकंड, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया। स्टूडेंट्स अमोनिया, this one ammonia, in the presence of catalyst tungsten it forms N2 plus 3H2, N2 plus 3H2. Student, rate of reaction for this reaction equal to K concentration of NH3 power 0, so that rate of reaction would be 0 for this reaction. Okay guys, note down it with the example. स्टूडेंट्स ये सभी एग्जाम्पल तो लर्न करने पड़ेंगे आपको, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ये हमारी थी स्टूडेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर स्टूडेंट्स आपको हम जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। हम आपसे ये एक एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे तब ही करें, अदरवाइज कोई नीड नहीं है कि आप करें, सही। ठीक बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो। ओके स्टूडेंट, जैसा आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 6.7 पॉइंट्स से रिलेटेड बात की है, न्यूमेरिकल्स का बच्चों में अलग से वीडियो बनाऊंगा, न्यूमेरिकल्स का बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल में आपको समझाऊंगा, तो वो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक रहेगा अपना न्यूमेरिकल। तो इन 6 पॉइंट पर आप स्टूडेंट्स वर्किंग करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमको बताएं। स्टूडेंट्स सेम एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शॉर्ट में इसको FOR बोले हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, साथ के साथ लिखते जाएंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, कंप्लीटली बिल्कुल जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह है। राइट डाउन स्टूडेंट्स, दोज केमिकल रिएक्शंस in which rate of reaction is directly proportional first power of concentration of reactants, concentration of reactants। क्लियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन क्लियर है सभी को? गुड। चलिए बच्चों बात करते हैं, हमारे पास एक रिएक्टेंट ए था, उससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, जब t इक्वल टू 0 सेकेंड रहता है बच्चों, t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उसको स्मॉल ले लेते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड 0 होती है बच्चों। आफ्टर t सेकेंड स्टूडेंट्स इसका सम पार्ट डिसोसिएट होगा, तो इसमें से कितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है? x पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, तो इतना ही पार्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, R इक्वल टू dx अपॉन dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स की पावर 1, a माइनस एक्स की पावर 1, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ dx अपॉन dt इक्वल टू k1 a माइनस एक्स, पावर 1 है उसका कोई मीन्स नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आप इस a माइनस एक्स को तो आप अदर साइड यहाँ लेके आ जाइए dx के बिलो,
और dt को k1 के पास ले जाइए। तो स्टूडेंट्स ये हो गई डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन, दिस वन डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन। बच्चों अब इक्वेशन फर्स्ट का अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। टेक इंटीग्रेशन, टेक इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, टेक इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब बच्चे, ध्यान दें। तो आपके पास क्या है, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, इक्वल टू आपके पास दे रखा है k1 dt। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, c हो जाएगा। स्टूडेंट्स इफ t इक्वल टू 0 सेकेंड देन x इक्वल टू 0, जैसे अपन ने जीरो डायरेक्शन में किया था वैसे के वैसे यहाँ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स माइनस ln a माइनस 0, x की जगह पर क्या पुट कर दिया 0, इक्वल टू k1 t की जगह पर क्या पुट कर दिया 0 प्लस c। तो बच्चों c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ln a, माइनस ln a आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए आप, और पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 ऑफ c, ऑफ c। तो c की वैल्यू आप पुट कर दीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t प्लस, लेकिन ये वैल्यू माइनस में है तो ये साइन क्या हो जाएगा माइनस ln a, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ln a। स्टूडेंट्स अगर आप इसमें k1 t की वैल्यू पुट निकालते हैं तो k1 t इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, k1 t इक्वल टू क्या हो जाएगा ln a। बच्चों ये इधर आएगा माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ln a ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस ln a माइनस एक्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों आपने कि ln m अपॉन n इक्वल टू होता है ln m माइनस ln n। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा लोगेरिथम में, लोगेरिथम में ये फॉर्मूला आता है, उसके यूज करके हम ये ln m ले लेंगे, ये ln n ले लेंगे, तो बच्चों ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो डिवाइड में आ जाएंगे तो देखो k1 इक्वल टू हो जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, और अपॉन टी नीचे ले लिया अपन ने, अपॉन टी नीचे ले लिया। स्टूडेंट्स इस केस में देखो अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान दें, या ध्यान दें आप, ln की इक्वल टू क्या होता है बच्चों, log e होता है फिजिक्स और मैथ्स में, लेकिन केमिस्ट्री में इसकी वैल्यू, केमिस्ट्री फिजिक्स में सब में वैल्यू क्या होती है 2.303 log बेस 10, ये वैल्यू होती है बच्चों। अगर ये वैल्यू आप ln की पुट कर देंगे तो k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी a अपॉन a माइनस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी, और अपने पास ये इक्वेशन नंबर आ जाती है थर्ड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाती है बच्चों, और इक्वेशन थर्ड ही हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन थर्ड ही क्या अपनी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन IR ही है, यही इक्वेशन थर्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कंप्लीटली इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लें।
तो बच्चों अपने इसमें अभी तक डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन के बाद में हमने डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन कैलकुलेट की, और इसके बाद में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। और अब इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के केस से हम हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करेंगे बच्चों। हाफ लाइफ पीरियड इक्वेशन थर्ड के बेस पे हम हाफ लाइफ पीरियड को डिटरमाइन करेंगे बच्चों। तो अब आप फोर्थ टॉपिक इसमें ले लेंगे हम, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड स्टूडेंट्स, आप अगेन हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन लिखिए बच्चों। अगेन हाफ लाइफ पीरियड की आप डेफिनेशन लिखिए। the time which is required the time which is required to convert half part of reactant into product in reaction is called half life period, is called half life period of that reaction. It is represented by T2G, it is represented by T2G। तो स्टूडेंट्स आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन A है और उसके बाद में ये क्या हो जाती है A/2। ये किसके इक्वल है बच्चों, X के इक्वल है। स्टूडेंट्स इसमें पहले टाइम T था, अब टाइम क्या हो गया, T हाफ हो गया। तो आपके पास K इक्वल टू K1 इक्वल्स टू क्या है 2.303 अपॉन T1 T log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स है। अब स्टूडेंट्स इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, K1 तो K1 ही रहेगा, लेकिन T की जगह पर तो क्या आ जाएगा बच्चों, T हाफ हो जाएगा। log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे बच्चों, A/2 पुट कर दोगे। तो A माइनस A/2 हो जाएगा। तो K1 इक्वल टू क्या हो गया 2.303 T हाफ इक्वल टू log बेस 10 A/2। A/2 का मीन्स कितना हो गया बच्चों, ये है A अपॉन A/2, 2 पर चला गया, ऐसे A कैंसिल हो गया, ये log 2 हो गया। स्टूडेंट्स log 2 की वैल्यू क्या होती है, सब बच्चे जानते होंगे log 2 की वैल्यू क्या होती है। log 2 की वैल्यू 2.303 T हाफ इक्वल टू log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010। तो स्टूडेंट T हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन होता है बच्चों 0.693 अपॉन K1। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल के बेस पर अच्छा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल बेस पर अच्छा फॉर्मूला है। और स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे आते हैं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे आते हैं। ये ट्रिपल स्टार है, ये डबल स्टार है, ये ट्रिपल स्टार है तो ये डबल स्टार है। स्टूडेंट्स एक बात और देखिए आप, इसमें T हाफ स्मॉल a पर डिपेंड नहीं है, जबकि जीरो ऑर्डर में डिपेंड था। T हाफ नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, जबकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड था। तो अगर आपसे इसके ग्राफ प्लॉट करवाएंगे तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए, हाफ लाइफ पीरियड को, इस हाफ लाइफ पीरियड को बच्चों कंप्लीट नोट करें। ओके चलिए स्टूडेंट्स देखो, अब अपन ने हाफ लाइफ पीरियड देख ली। अब हाफ लाइफ पीरियड के बाद में हम इनकी ग्राफ्स देखते हैं। ग्राफ्स डिफरेंट टाइप के बनेंगे बच्चों। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन आई थी कि -ln a माइनस एक्स इक्वल टू K1T माइनस ln a, ये इक्वेशन आई थी। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो बिल्कुल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना।
एक तो स्लोप इसका पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है, थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा। आप इसमें ऐसा कर दे, थोड़ा इसको और अरेंज कर दे बच्चों तो अच्छा रहेगा। यदि आप इसको ऐसे लिखे कि इसको ऐसे लिख दे ln a पॉजिटिव में, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ln a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस k1t प्लस ln a। इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये y हो जाए, ये mx हो जाए, ये c हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसमें आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसे कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे, ये तो बन जाएगा ln a माइनस एक्स वाई एक्सिस पर, को x एक्सिस पर क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। अब इसका स्लोप निगेटिव आ रहा है बच्चों, निगेटिव स्लोप आ रहा है, और साथ में इंटरसेप्ट भी आ रहा है, ये इंटरसेप्ट है इतना, ये इतना इंटरसेप्ट होता है। तो ये इंटरसेप्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, ln a को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ln a को इंडिकेट कर रहा है। और टेन थीटा इसका जो स्लोप है m इक्वल टू टेन थीटा, वो क्या है बच्चों, माइनस k1 है। तो एक ग्राफ तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से हम ऐसे बना सकते हैं। ये तो ग्राफ फर्स्ट हो गया। ऐसे बच्चों ग्राफ सेकंड और थर्ड भी हम अलग अलग इक्वेशन से बना सकते हैं। तो देखो ग्राफ सेकंड अपन बना देंगे इस इक्वेशन से, k1 इक्वल टू था k1 2.303 t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये वाली इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1t अपॉन 2.303। ऊपर वाले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसमें ये y एक्सिस पे ले लीजिए और x एक्सिस पे आप t ले लीजिए, तो देखिए ग्राफ कैसे आ जाएगा। x एक्सिस y एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, log बेस 10, y एक्सिस पे आपने ले लिया बच्चों ये y एक्सिस पे आपने ले लिया log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये यूज किया, और x एक्सिस पे आपने t ले लिया। तो स्टूडेंट्स ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन पॉइंट से, और स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें m जो है वो स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, टेन थीटा को बता रहा है, और टेन थीटा किसके इक्वल है बच्चों, टेन थीटा m के इक्वल है, और m की वैल्यू इससे रिलेटेड क्या है, k1 अपॉन 2.303, k1 अपॉन 2.303। तो ऐसे भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ग्राफ नोट कर लें, ये दोनों ग्राफ प्लॉट करें। अब देखो बच्चों, जब हमने ग्राफ प्लॉट कर लिए तो अब हम इसके बारे में नेक्स्ट ग्राफ और बनाते हैं। आपने हाफ लाइफ पीरियड देखा था, टी हाफ इक्वल टू a अपॉन 2k1। अभी हाफ लाइफ पीरियड का जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, 0.693 अपॉन k1, ये फॉर्मूला था बच्चों। अब इसमें आपसे कहा जाए कि टी हाफ वर्सेस आप स्मॉल a के बिटवीन में ग्राफ प्लॉट करो, ऐसे ग्राफ प्लॉट करो आप। तो अब इसमें कहीं पर a पे डिपेंड हो रहा है कि बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट लाइन आ जाएगी, ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट कर लो, इस ग्राफ को भी बना लीजिए। ऐसे ग्राफ बनते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं इसी से रिलेटेड बच्चों एक इंटरवल फॉर्मूला। एक इंटरवल फॉर्मूला भी आपके कोर्स में है, इंटरवल फॉर्मूला, इंटरवल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटरवल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स इंटरवल फॉर्मूला, व्हाट इज इंटरवल फॉर्मूला?
Students, suppose that concentration of reactant, initial concentration of reactant is be unknown. Let consider initial concentration of reactant, initial concentration of reactant is be unknown. Then 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 concentration in different times is be x1 and x2 in t1 and t2 time, t1 and t2 time. Students, suppose that t1 equal to 2.303 k1 log base 10 a upon a minus x1, a upon a minus x1, equation number first. In second time, t2 equal to 2.303 upon k1 log base 10 a upon a minus x2. Students, only changes t1 x1, t2 x2. Then equation 2 minus equation 1. Equation 2 minus equation 1. Now student, t2 minus t1 LHS equal to कॉमन्स इन बोथ 2.303 k1, ये कॉमन है बच्चों. फिर इनसाइड क्या बचेगा बच्चों, log base 10 a अपॉन a माइनस x2, इक्वेशन 2 से आया है ये वाला स्टेप, माइनस इस वाले में क्या बचा है बच्चों, log base 10 a अपॉन a माइनस x1. ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये फॉर्मूला वही log m माइनस n इक्वल टू log m डिवाइड बाई n वाला फॉर्मूला आ गया, log से रिलेटेड फॉर्मूला आ गया बच्चों. तो देखिए अगर ये log से रिलेटेड फॉर्मूला आ चुका है तो देखिए आप यहां देखिए t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन k1 log बेस 10 a अपॉन a माइनस x2 डिवाइड बाई a अपॉन a माइनस x1, ये हो जाएगा log m बट अपॉन log n. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन k1 log a माइनस, ये अब ऊपर चला जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ओनली a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2. तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए एक इंटरवल फॉर्मूला आ गया, ये आपके लिए एक इंटरवल फॉर्मूला आ गया बच्चों. तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिए, इसको ऐसे कैसे नोट कर लो. स्टूडेंट्स जो आपके पास इंटरवल फॉर्मूला है उससे ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो आप. आपने लिखा कि t2 माइनस t1 इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 k1 log बेस 10 a माइनस x1 डिवाइड बाई a माइनस x2. तो बच्चों log बेस 10 a माइनस x1 डिवाइड बाई a माइनस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा k1 इंटू
K1 इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 2.305। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये y एक्सिस, ये T2 माइनस T1 x एक्सिस, तो इसका हम कंपैरिजन किससे करते हैं, y इक्वल टू mx से कर देते हैं। तो ग्राफ स्टूडेंट देखो, y एक्सिस पे बच्चों हम क्या ले लेंगे, log बेस 10 a माइनस x1 डिवाइड बाई a माइनस x2, और x एक्सिस पे क्या ले लेंगे स्टूडेंट, टाइम इंटरवल ले लेंगे T2 माइनस T1। तो स्टूडेंट्स ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्लोप किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, स्लोप इक्वल है m इक्वल टू K1 2.303, जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, tan थीटा को। नोट कर लीजिए बच्चों, ग्राफ भी बिल्कुल सेम जो पहले अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी, सेम वैसा के वैसा ग्राफ है, स्लोप भी सेम है। चलिए तो बच्चों अब हम ले रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मेनी एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल दीजिए, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। स्टूडेंट्स अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4NO2 होता है। ये कैसे ब्रेक होता है बच्चों, N2+2H2 में होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों। सेकंड है डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, 2H2O2 स्टूडेंट्स डिकम्पोज होता है 2H2O+O2 में। स्टूडेंट ये सबकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसमें टू मॉलिक्यूल्स है तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बन जाएगी। क्या रिएक्शन मैकेनिज्म होगी बच्चों, तो स्टेप फर्स्ट में तो क्या होगा, H2O या H2O2 ब्रेक होता है स्लो स्टेप में H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, लेकिन सेकेंड H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, लेकिन ये स्टेप फास्ट होगी, तो बन क्या जाएगा बच्चों, H2O बनेगा, साथ में O2 रिलीज हो जाएगा। कंप्लीट रिएक्शन देख लो चाहो तो, 2H2O2 O से O कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा 2H2O और साथ में क्या बचेगा, O2 बचेगा। लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है बच्चों, स्लो स्टेप होती है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इसका डीकंपोजिशन। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, 2N2N2O5 रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझा दी मैंने इसकी, 4NO2+O2, ये एग्जाम्पल बन जाएगा। स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल्स देखते जाइए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ एग्जाम्पल देखो बच्चों, डीकंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। स्टूडेंट्स SO2Cl2, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है, इसका डीकंपोजिशन होता है SO2 गैस और Cl2 गैस में, इसमें डीकंपोजिशन होता है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। स्टूडेंट्स इथीन H2C डबल बॉन्ड CH2 plus H2 in the presence of nickel, it forms CH3CH3। तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजनेशन जो है ये भी इसका एग्जाम्पल बनता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। नेक्स्ट, ऑल रेडियो एक्टिव डिके, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो सब इस कैटेगरी में यूज होते हैं बच्चों।
रेडियो एक्टिव डिके का मीन्स ये होता है जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, हेवी न्यूक्लियस होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं और डिफरेंट रेडिएशंस का एमिशन करते हैं, उनको आप बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये सभी एग्जांपल्स है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, इनको आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।